اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مختصر سی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے آج یہ نہیں کہ بندہ پیر پکڑے اور اپنے پیروں کی بات ہی کرے، اور کرنی تو ویسے چاہیے اپنے پیروں کی بات ہی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیر کی بات ہی کیوں کرتے ہیں۔ چلیں حدیث سے آج ثابت کرنا ہے۔ چند ایک حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہیں کہ پیر کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں۔ واہ یہ قافلے جو بس کرا کے چورا شریف یا مختلف جگہوں پہ کیوں جاتے ہیں، حدیثوں سے اس کا ثبوت آپ کو میں دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیک کی ہم نشینی اور بد کی ہم نشینی کی مثال کستوری اور آگ ڈھونکنے والے کی ہے۔ یہ بات ذرا مشکل ہے، سادہ کر لیتے ہیں اس کو، کہ نیک کی صحبت اور بد کی صحبت، نیک بندے کی ایک صحبت ہوتی ہے اور ایک بد بندے کی صحبت ہوتی ہے۔ نیک کی صحبت ایسے ہے جیسے کستوری کی خوشبوئیں ہوں، اور بد کی مجلس ایسی ہے جیسے کسی نے آگ کی دھونکنی جلا دی ہو۔ اب ظاہری بات ہے، کستوری والا آپ کے پاس آئے تو یا تو آپ اس سے کستوری لے لیں گے یا وہ آپ کو کستوری دے دے گا۔ اگر آپ کستوری کہتے ہیں خوشبودار چیز کو، یہ اب اس کی میں ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ خوشبودار چیز جو ہے یہ ہرن کی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے بنتی ہے، ناف میں سے بنتی ہے، یہ خوشبو ہے، مہک ہے جو دلوں کو معطر کر دیتی ہے۔ تو کستوری لانے والے سے یا تو آپ کستوری لے لیں گے یا وہ آپ کو دے دے گا، اور اگر وہ کستوری آپ کو نہیں دیتا اور نہ ہی آپ اس سے لیتے ہیں، کچھ بھی آپ نہ کریں، وہ بھی کچھ نہ کرے، آپ بھی کچھ نہ کریں، لیکن کم از کم آپ اس سے جب مل لیں گے تو وہ کستوری کی خوشبو ضرور آپ تک پہنچ جائے گی۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ اللہ والے ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس آتے ہیں، ان کے مرید ہوں یا نہ ہوں، ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ نہ کچھ فیض مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ فیض ضرور مل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا نا، ایک اللہ والے سے پوچھا، ایک مرید ان کو ہوا دے رہا تھا، اپنے پیر کو ہوا دے رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ یہ قرب سے کیا ملتا ہے جی، قرب سے کیا ملتا ہے، یہ قریب بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے پیر و مرشد نے کہا یہ بندہ ہوا مجھے دے رہا ہے، کیا آپ کو آ رہی ہے؟ کہنے لگا جی آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ قرب سے ملتی ہے چیز، کہ ہوا مجھے دے رہا ہے لیکن آپ کو بھی مل رہی ہے۔ لیکن بد کی صحبت ایسی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوستو فرمان ہے، وہ آگ دھونکنے کی مثال کی مانند ہے، بد کی مجلس۔ کیوں؟ اب آگ کا جلانا جو ہے، یا تو وہ بندہ خود بھی جلے گا، اس کا اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی جلا دے گا۔ بد کی محفل بری ہے، نیک کی محفل جو ہے وہ اچھی ہے۔ اب بندہ نیکوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دے، توجہ کریں، آپ توجہ کریں، قریب ہو جائیں، تھوڑے سے جگہ کی گنجائش بن جائے گی، آگے بیٹا ہو جائیں، آگے تھوڑا سا گنجائش کریں۔ اب نیک کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو وہ اللہ والا کھینچ کر اللہ کے قریب لے جائے گا، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور جب بندے کو اللہ کا قرب بن جاتا ہے، مل جاتا ہے نا، تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کا جب بندہ محبوب بنتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے اعلان کر کے اس بندے کے بارے میں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ کے پاس بیٹھنے والے سے، اس قرب والے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔
फिर जिब्रील अमीन पूरे आसमान में ऐलान करते हैं कि आसमान वालों, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब उस बंदे से मोहब्बत करो। सारे आसमान वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर उस बंदे की मोहब्बत अल्लाह ताला जमीन वालों के दिलों में डाल देता है, और उस अल्लाह वाले की मोहब्बत जब जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है तो उस बंदे को मकबूलियत मिल जाती है। जहां जहां से भी गुजरता है वो लोग उठ के उसका अदब करते हैं, उसका हया करते हैं। ये अल्लाह के साथ मोहब्बत का ये अजर है। और दोस्तों, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों करते हैं? आप यहाँ पे आए हैं, रिजवान साहब ने आपको बुलाया, मैं कहता हूं कि मैं रिजवान साहब की मोहब्बत के लिए आया हूं, मैं अपने पीर भाइयों की मोहब्बत के लिए आया हूं। अब बाई से मोहब्बत जो है इसका अजर क्या है, यह भी साथ साबित हो जाएगा। और जब देखें एक बाई से बाई की मोहब्बत का अजर इतना ज्यादा हो, और वो भाई आपका दीनी भाई, आपका पीरो मुर्शिद हो, वो इल्म वाला हो, तो फिर उसका कमाल क्या होगा। अजीज दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम हमें मोहब्बत से क्या मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत से क्या मिलता है? हदीस मुबारक आपने 9th 10th के कोर्स में पढ़ी है कि मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह के लिए, जो काम भी करना है अल्लाह के लिए करो। जब तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, जब तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो क्या मिलेगा? रोज़े महशर अल्लाह ताला फरमाएगा, रोज़े महशर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐनल मुतहाबून बिजलाली, कि मेरी इज्जत की खातिर, मेरी अजमत की खातिर जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे वो कहां हैं? क्या है वो? कहां है? अल यौम अजिल्लुहुम फी जिल्ली, आज के दिन मैं उनको अपने साए के नीचे जगह अता फरमाऊंगा, अपने अर्श के साए के नीचे उनको जगह अता फरमाऊंगा जो मेरी अजमत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और फिर आगे फरमाया कि यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्ली, कि उस दिन फिर मेरे साए के अलावा कोई साया भी नहीं होगा। रोज़े महशर जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में वो लोग बैठेंगे जो फकत अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों। एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए दोस्तों जब हम निकलते हैं तो अल्लाह के कितने फरिश्ते उस पर साया करते हैं। देखें, अल्लाह के लिए जब बंदा मोहब्बत करता है ना, उसके ईमान की तकमील होती है। और अल्लाह के लिए जो बंदा एक दूसरे से मोहब्बत करे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन लोगों के लिए, तवज्जो से हदीसें, 2-4 हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा फिर खत्म, कि उन लोगों के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मेरी अजमत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी अजमत की खातिर एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। तवज्जो से ये फिक्रे सुन लें कि जो मेरी खातिर बहम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी खातिर बहम एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं, जो मेरी खातिर बहम एक दूसरे पर खर्च करते हैं, उन पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, उन पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। और फिर फरमाया कि उन लोगों के लिए जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो जन्नत में नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे। अब मुझे बताओ कि वो लोग, वो भाई जो एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, वो जन्नत के नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। तो हम अपने पीरों से मोहब्बत किस लिए करते हैं भाई? अल्लाह के लिए करते हैं। पीरों से मोहब्बत किस लिए की जाती? पीरों का तसव्वुर लोगों ने अपने ज़हन में गलत बैठा लिया है। लोग कहते हैं जो पीर वो है जो शोभताबाजी दिखाए, लोग कहते हैं पीर वो है जो सरसों हथेली पे जमा दे, वो पीर है। भाई पीर का मकसद ये नहीं होता, पीर का मकसद सिर्फ रहबर और रहनुमा होता है। कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह कल औलिया अल्लाह की शान बयान कर रहे थे कि हम लोग तवीज़, धागे, इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, जादू टूने के पीछे पड़े हुए हैं। जो शोभताबाजी दिखा दे उसको बहुत बड़ा पीर हम मानते हैं। नहीं नहीं, हरगज नहीं। पीरो मुर्शिद का मकसद जो है वो रहनुमाई देना होता है, दीन के मामले में रहनुमाई देना होता है। पीरो मुर्शिद हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब बंदा उनके पास आया था ना, आके कहने लगा 5-4 दिन साथ रहा, पल्ला चाड़ा और निकलता बना, कहने लगा कि मैंने तो आपके अंदर देखा ही कुछ नहीं है। तो हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया
क्या तूने मेरा काम इन 5 दिनों में कोई ऐसा भी देखा जो मैंने शरीयत के खिलाफ किया हो? क्या वो अर्ज करने लगा, सरकार नहीं ऐसा तो नहीं है, शरीयत के मुताबिक तो आप चल रहे हैं। आपने फरमाया यही तो पीरी है, इससे बढ़कर और क्या होती है करामत? भाई हम कहते हैं जी हमें कोई मुंडा मिल जाए, हमें कोई बच्चा मिल जाए, हमारे 1 लाख रुपया इनाम निकल आए तो फिर हम इनको पीर मानते। नहीं, पीरों का मकसद ये नहीं है दोस्तों। पीरों का मकसद रहबरो रहनुमाई है दीन के मामले में, कि तुम्हें जिंदगी में मुश्किलात में फंस गए हो, उन मुश्किलात में शरीयत से रहनुमाई लेकर तुमने उन मुश्किलात से कैसे निकलना है, ये मकसद है पीर पकड़ने का। इसकी ये तो मैं लंबा चैप्टर कर गया, पीर पकड़ने का मैं क्या मकसद होता है इस पर किसी दिन और बहस करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है। सुने हदीस मुबारक, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में याकूत के सतून हैं, जन्नत में याकूत के सतून हैं और जमुर्द के बाला खाने हैं, और वो बाला खाने चमक रहे हैं। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह उन बाला खानों में कौन रहेगा? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन बाला खानों में, उन महल्लात में वो लोग रहेंगे जो मेरी खातर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। उन बाला खानों में, मैं मिशकात शरीफ की हदीस मेरे पास हवाले हैं, उन बाला खानों में, उन जन्नत के महल्लात में वो लोग रहेंगे जो मेरी खातर एक दूसरे से हमनशी हुआ करते थे। आप हमनशी बैठे हैं, हमनशी का मतलब होता है इकट्ठे होकर बैठ जाना एक दूसरे के लिए मोहब्बत की खातर। और उन बाला खानों में वो लोग रहेंगे जो मेरी खातर एक दूसरे से मुलाकातें किया करते थे। दोस्तों, फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक याद आ गई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़े महशर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो नबी होंगे, ना शुहदा होंगे, ना अंबिया होंगे, ना शुहदा होंगे, और उन लोगों पर नबी भी और शुहदा भी रशक करेंगे। उन लोगों पर नबी भी और शुहदा भी रशक करेंगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग कौन हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग जो सिर्फ रिश्ते नाते की वजह से एक दूसरे से नहीं मोहब्बत करते थे, रिश्ते नाते की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे। वो लोग जो किसी माली शराकत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, वो लोग सिर्फ मेरी रजा की खातर, मेरी अजमत की खातर और मेरी शरीयत की खातर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे। मेरी शरीयत की खातर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे। उन लोगों के मुकद्दर पर शुहदा और अंबिया भी रश्क फरमाए। कितना दर्जा है अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने का। अब देखें, अब आगे चलें, हम देखते हैं कि हमने ये रिजवान साहब या नदीम साहब ये चूरा शरीफ जाने के लिए बस करवा रहे हैं, क्यों? आइए हदीस मुबारक सुनिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक कि जब बंदा एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए दूसरी बस्ती में जाता है। रजवान साहब तवज्जो करें जरा, ये आपके सुनने के लिए 2 बातें बड़ी जरूरी है कि जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए दूसरी बस्ती में जाता है तो अल्लाह ताला उस मुसलमान के रास्ते में एक फरिश्ता बैठा देता है। जब वो मुसलमान उस फरिश्ते के करीब से गुजरने लगता है तो फरिश्ता कहता है कि भाई तू कहां जा रहा है? तो मुसलमान भाई कहता है कि मैं फलां बस्ती में, मैं फलां चूरा शरीफ की बस्ती में। अब हम जा रहे हैं चूरा शरीफ, वो भी तो एक बस्ती है, वहां भी तो हमारा एक भाई है जिसका नाम पीर बदर मसूद शाह है। लोगों ने तो तस्वर में बैठा लिया ना कि पीरों की बात जो है ये वो भाई दीनी मामले में हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें दोस्त भी कहते हैं। अब वो मुसलमान भाई अगर पढ़ा लिखा हो और वही मुसलमान भाई आपका पीरो मुर्शद हो तो उसका कमाल या उसका दर्जा कितना होगा। ये तो हदीस मुबारक है ना एक आम मुसलमान भाई के लिए। अब अगर मुसलमान भाई को आप मिलने के लिए जाते हैं तो क्या दर्जा में? फरिश्ता उसको कहता है कि भाई तू उस बस्ती में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? तो बंदा कहता है कि मैं उस बस्ती में अपने मुसलमान
भाई से मोहब्बत करता हूं, मैं उसकी मोहब्बत की खातिर उधर जा रहा हूं। फरिश्ता कहता है क्या उस बंदे का तेरे ऊपर कोई एहसान है जो तू मोहब्बत करता है उससे और उसकी मोहब्बत की खातिर उसको मिलने के लिए जा रहा है? तो मुसलमान कहता है कि नहीं, मेरा उससे कोई गर्ज नहीं है, ना उसका मेरे ऊपर कोई एहसान है, मैं सिर्फ अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करता हूं और उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ता फरमाता है कि ए बंदे सुन ले, मैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं, मैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं कि जिस तरह तू उस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला भी तेरे साथ उसी तरह मोहब्बत करता है। अब अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करने का सिला क्या ठहरा? तो निचोड़ निकाले हदीस मुबारक का कि अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करने का नतीजा क्या निकला कि बंदा अपने भाई से मोहब्बत करे तो फरिश्ते के जरिए अल्लाह पैगाम भेज देता है कि बंदे तू मेरे अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह पैगाम भेज देता है कि मैं तेरा, तू मेरा महबूब बन गया। और जब बंदा महबूब बन जाता है अल्लाह का, अब अल्लाह का महबूब बनता है तो क्या होता है? सुनो दोस्तों, हजरत रज़ैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आपसे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रज़ैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्या तुम्हें दीन की बुनियाद के बारे में पता है, मालूम है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसको खुद ही जवाब फरमाया कि दीन की बुनियाद ये है कि तुम अहले मजलिस की, अहले जिक्र की मजालिस जो है वो इख्तियार किया करो। जब तन्हाई में बैठो तो अल्लाह का जिक्र किया करो और अल्लाह की खातिर दूसरों से मोहब्बत करो और अल्लाह की खातिर दूसरों से बुग़्ज़ रखो। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रज़ीन, क्या तुम्हें मालूम है कि जब बंदा, रज़वान साहब, जब बंदा अपने मुसलमान भाई की ज़ियारत के लिए अपने घर से निकलता है काफिले के साथ या अकेला, हदीस मुबारक सुना रहा हूं, मिंबरे रसूल पे झूठ नहीं मैं कह रहा, कि जब बंदा अपने मुसलमान भाई की ज़ियारत के लिए घर से निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चल पड़ते हैं और वो फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं कि मौला, उसके लिए दुआ करते हैं कि मौला, जिस तरह इस बंदे ने अपने मुसलमान भाई से तल्लक जोड़ा है, तू भी इसको अपनी रहमत और मगफरत के साथ जोड़ दे। वो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। अब बताओ कि चूरा शरीफ जाना हराम है? अल्लाह के वलियों के पास जाना हराम है? काफिलों के साथ जाके दरगाहों पर, अल्लाह के वलियों की दरगाहों पर जाना हराम है? नहीं नहीं नहीं, ये बकाया ऐन हदीस के मुताबिक है, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीसों के मुताबिक ये बात है। दोस्तों, बड़े शर्फ वाले वो लोग हैं जो अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। अब अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए जाना हदीस से साबित हुआ कि 70,000 फरिश्ते उन ज़ियारत करने वालों के साथ चल पड़ते हैं और उनकी बख्शिश और मगफरत के लिए दुआएं करते हैं। अच्छा, बंदा मर जाए तो आगे रोज़े महशर कोई चीज़ काम नहीं आएगी, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, सब एक दूसरे से भागेंगे। ऐसे ही है, ये हदीसों में आपने सुना। एक हदीस में आपको आज ऐसी सुनाता हूँ कि नेक लोगों की दोस्तियां उधर भी काम आएंगी। सुभान अल्लाह। नेक लोगों की दोस्तियां रोज़े महशर भी काम आएंगी। हमने ऐसे यारी लगाई हुई है, नेक लोगों की दोस्तियां रोज़े महशर भी काम आएंगी। हदीस मुबारक बलाल साहब कि आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि रोज़े महशर सोहबत यारा भी नसीब होगी। कैसे? कि आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि रोज़े महशर एक मुसलमान भाई मशरक में होगा, एक मुश्कात शरीफ की हदीस, एक मुसलमान भाई मगरब में होगा। इसका मफहूम फिर निकालना पड़ता है कि एक कहीं हो, एक कहीं हो, एक इधर हो, एक चूरा शरीफ में हो, एक चकचवी में बैठा हो, एक चूरा शरीफ में बैठा हो, एक इधर हो, एक पाकपतन शरीफ में हो, एक इधर हो, एक दाता हजवेरी के बारगाह में हो। एक हदीस मुबारक, एक मुसलमान भाई मशरक में हो,
दूसरा मगरब में हो, तो अल्लाह ताला रोजे महशर उन दोनों को इकट्ठा कर देगा और फरमाएगा एक दूसरे से, ले ये तो तेरा भाई है जिससे दुनिया में मोहब्बत किया करता था, ये तेरा भाई है जिससे तू दुनिया में मोहब्बत किया करता था। अब दोस्तों आपने खुद निचोड़ निकालना है कि अल्लाह वालों की मोहब्बत जो है वो हमें क्या दर्जा देती है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला बनाए। ज़रूरी नहीं है कि पीरों से ही मोहब्बत करनी है, भाई आप एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दो, लेकिन उस मोहब्बत में आज के दौर में जो मोहब्बत होती है ना, उसमें तमा होती है। वो मोहब्बत तमा से खाली हो, वो मोहब्बत खुदगर्जी से खाली हो, वो मोहब्बत लालच से खाली हो, वो मोहब्बत दुनियादारी से खाली हो, वो मोहब्बत मादा परस्ती से खाली हो, वो मोहब्बत भाई के लिए हो या पीर के लिए हो, उस मोहब्बत में खलूस हो। इस दिल में अगर खलूस है तो फिर वो मोहब्बत कारगर साबित होगी। लेकिन अगर उस मोहब्बत में खुदगर्जी है, लालच है, तमा है, तो धोखा है, फ्रॉड है। हमारी दोस्तियां फ्रॉड की हैं, हमारी दोस्तियां फ्रॉड की हैं, हमारी दोस्तियां लालच की हैं, हमारी दोस्तियां खुदगर्जी पर मबनी हैं। हम दूसरे से मिलते हैं तो फिर सोचते हैं कि आज मैंने इसको ये फायदा दिया, कल मैंने ये इससे फायदा लेना है। ये खुदगर्जी की दोस्तियां हैं। दोस्तों ऐसी दोस्ती नहीं। दोस्ती मुसलमान की दूसरे मुसलमान से ऐसे हो कि अगर वो तेरा भाई तकलीफ में है तो सब कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए उस पर। खलूसे दिल के साथ एक दूसरे से जब मोहब्बत करोगे तो फिर इस दर्जे पर पहुंचोगे। ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, बारकैफ इतना सबक आपने ज़रूर लेना है कि एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, एक दूसरे के साथ तामन करने वाले बन जाओ। इससे बड़े दर्जे मिलते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।